कि people don't just give flowers usually. लोगों को ना यहाँ पे लाइक ज्यादातर होता है कि अच्छा हमने अगर किसी और का साथ पोस्ट भी लगा दिया कुछ कर दी तो बस तो she was like ये जो मेरे हिस्से का रिस्क है ना वो मुझे मिलना है. एग्जैक्टली या मेरा भी है आप 100% रिफंड ले लो. बिकॉज मैं हमारे साथ एक और चीज हुई लाइक यू सेड अब हमारे ना ये होता है कि पॉजिटिव फीडबैक कोई नहीं देगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट. आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है. आई हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग विद हर काफी टाइम से लेकिन फाइनली वी मीट इन पर्सन. इन लोगों को आप काफी सारे लोग तो आई एम श्योर जानते होंगे, इनकी बात भी हुई होगी. टुडे वी हैव एमन ताहिर, आल्सो नोन एज द फ्लोरिस्ट आई वुड से. She owns a flower shop in Bahria town and she has been in the business for I think more than 4 or 5 years, we could say. And even 2019. yeah, she started 2019, so it's been 6 years. And she started from a home-based business and then she opened a flower shop. She's also an accounting and finance graduate. She also did CFA and she's also, mashallah, married and managing all of her home by herself too. She moved to Japan after that and now she's back and I'm sure अब हमें बहुत ज़्यादा नए trends और नई चीज़ें जो है वो florist के अंदर भी नजर आएंगी. बाकी Eamon, if you would like to introduce yourself in a few lines, who is Eamon? Yeah, so basically I'm a self-taught florist. I am an accountant actually, accountant and finance person turned florist, but I always loved creative things. And initially I was self-taught, but in Japan, alhamdulillah, I got the chance to learn Ikebana and then from florists like Nikolai Bergman. And yeah, I learned a lot from there. So I'm a full-time florist now. Full-time florist now. So Eamon, आपको like how did you develop the interest in flowers or like flower arrangements and bouquets? Yeah, the interest was always there because my mother used to work with flowers. She used to make like artificial floral arrangements and then even fresh floral arrangements ghar pe. So, but I never thought of it as like something I would do. But I was always like, I was a creative person and I loved doing creativity. So I remember, I think back in the day, there were no imported flower shops here in Pindi, especially in DHF area side when back in 2018, 2019, when both these societies were developing. Yeah. So you had to either go to Lal Kurti to get the local flowers or in Islamabad F7, F6. So it was my mother's birthday and that was the first time I was like, I called my husband, his office was in Islamabad, ki, when you're coming back, please bring these flowers. I want to make something for her. I know she loves flowers. So I made, so I made this flower box for her. And it was like a garden box. I put the oasis and everything, and everyone really loved it and appreciated it. And that was the day I realized, okay, so this is something I'm good at, and I really enjoyed doing it. And there's a gap in the market. And there's a huge gap in the market, so that's how it started off. So, do you remember your first order? Because I clearly remember mine. I do, because when I launched it, I spent a lot of time researching and making sure that I was able to. I did not hire anybody. I wanted to make sure that I learn all the specifics before I, offer it to any customers, because it was an online business and there's like a lack of trust in online businesses. So I wanted to make sure that I know my stuff before I'm putting it out to the market. And I remember back then there were not a lot of vendors, so I ordered the first set of boxes from China. And so, and I did this marketing sort of thing where I was like, okay, so this is launching, and I think it was a 10-day countdown or something. I still have that on my Instagram. And I was like, okay, fine, I'm gonna launch it, but nobody's gonna order, they're not. And the first day of the launch, I got, I think, 4 and 5 orders. And I was completely overwhelmed. Okay, so people, they want to order from me and they like the arrangement that I put up. Abhi main wo arrangement dekhu to mujhe hota hai kya tha. I think we have all been there. So, but I remember those, like, I clearly remember those 4 or 5 clients and like the first person who and the confidence booster that it was. And I was like, okay, so this is going to be okay. So who came up with the name, like the florist? Who came up with the name? Did. I was like, I had a couple of names in mind. I don't remember the other options, but these were like, I think I shortlisted 3 names. I was like, I didn't want it to be too fancy. याद ही ना रहे and तो मैंने जब ये I sent to my friend group, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स यूनी की हैं, उनको भेजा, अपने पेरेंट्स को भेजा.
सबको भेजा, तो जो मुझे याद है फ्रेंड्स ने देर लाइक दिस, मतलब सिंपल शॉर्ट हाँ याद एंड रहता है आराम से। मतलब नॉट अ लॉट ऑफ फ्लफ अराउंड इट, तो बस एवरीवन नोज कि यार ये क्या चीज़ है, लाइक हाँ ठीक है, तो दैट इज हाउ। अच्छा, सो लाइक व्हेन आई वाज इनवाइटिंग हर, तो मुझे सबसे ज्यादा यही ख्याल आ रहा था कि मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज लिटरली द ओनली वन इन दिस फील्ड आई थिंक मेरे आसपास जिनकी लाइक एक्चुअल फ्लावर शॉप है। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाई इज दैट कि लाइक लड़कियां या खवातीन अभी तक इस बिजनेस में क्यों नहीं आई? क्योंकि बाकी तो होम बेस्ड केक्स के तो इतने ज्यादा हैं जिसका कोई वो नहीं है, कैफेज भी हैं, हर चीज है, बट लाइक व्हाई डू यू थिंक कि इस चीज में क्यों नहीं है अभी तक? यार फ्लावर्स जो एक मीडियम है, दे आर वेरी, इट्स नॉट हार्ड, बैक एंड पे बहुत काम है। मतलब देखने में तो इट्स ऑल प्रिटी के अच्छा फूल होते हैं, ले लेते हैं। जब आप उसको स्केल करते हो ना, उसमें आपकी सप्लाई चेन, कि आपने जिन लोगों से मैं हाल से बात करनी है उन लोगों तक पहुंचना भी, बिकॉज देयर इज लाइक इट्स अ मेल डोमिनेटेड मार्केट ऑफ कोर्स। एंड फिर उनको पहुंच के फिर उनकी केयर करना, मतलब आपने फ्लावर केयर के उसमें देयर इज अ लॉट दैट गोज इन, स्पेशली हमारे जो हाँ वेदर है, और उसके लिए एक स्पेस होना, उसके लिए केयर करना, उन फ्लावर्स की बहुत मेहनत होती है, मेहनत का काम होता है। सो आई थिंक इट्स ईजियर जब आप उसको छोटे छोटे, लाइक लोग अगर घर पे कर रहे होते, मैं भी जिस तरह घर पे कर रही थी, तो आप थोड़ी थोड़ी ले लेते हो, बल्क नहीं, आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ता। जब आप फूलों को जब स्केल करते हो, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ आई थिंक एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ डीलिंग विद मेन, तो लोग थोड़ा उससे घबरा भी जाते हैं। और मुझे लगता है दिस इज लाइक दिस वाज ऑल्सो एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया इन पाकिस्तान। Yeah. यहाँ पे भी है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी भी मेरे आसपास लाइक आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी को सुना हो कि वो कहें कि वो अच्छा मैंने फ्लावर शॉप खोल लिया है। Exactly. लोग कहते हैं कि ओ कैफे हो उसमें फ्लावर्स हो, बट उसमें- स्पेसिफिकली मतलब ये जनरल यही होता है, हर कोई कहता है Exactly. यू हैव अ बुक शॉप, अ कैफे एंड अ फ्लावर शॉप, Exactly. बट उस तरह से Because फ्लावर्स का हमारे नहीं यहाँ कभी ना, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर आप मार्केट देखें, आई थिंक लाहौर में शायद थी एक दो फ्लावर शॉप्स तब शुरू हो चुकी थी, बट इस्लामाबाद की जो जब आप फूलों का जिक्र करते थे ना, तो वो होता था जब वो F7 वाली फूलों वाली मार्केट, या लाल कुर्ती की फूलों वाली मार्केट, या अभी जो बहरिया की इधर एक्सप्रेस वे पे खुली है, तो लोगों के दिमाग में व्हेनेवर दे यूज्ड टू थिंक ऑफ फ्लावर्स, तो वो फूलों वाली दुकान वही आती थी। दे नेवर थॉट कि इट कुड बी अ लग्जरी थिंग, एंड अगेन उसमें यही आई थिंक काफी कंसर्न्स होते थे, इवन मेरे थे, कि अच्छा आप उसको स्केल करते हो, क्या आप मार्जिन एंड ऑल दोस थिंग्स और क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं, मिलेंगे फ्लावर या गिफ्टिंग नहीं कॉन्सेप्ट है या हाँ। नहीं। सो आई थिंक बाहर तो बहुत इस तरह की फ्लावर शॉप्स का कॉन्सेप्ट होता है कि एंड आई थिंक फ्लावर शॉप्स आर रियली थेरेप्यूटिक, कि क्यूट सी सा हो और उस तरह कॉन्सेप्ट हो। तो वो यही था कि नॉट ओनली स्पेस के लोग जहाँ आके फ्लावर्स बस बनवाएं, बट उस जगह को भी इंजॉय करें, उस स्पेस को। एंड देन जो आई थिंक मेरा लाइक यू सेड कि कोई भी फ्लावर, यहाँ ना ये होता था कि फ्लावर्स है तो बस फ्लावर फूलों की दुकान है। तो व्हाट आई लर्न जब मैं ऑनलाइन कर रही थी, कि people don't just give flowers usually. They want something, either something sweet with it, or they want a gift with it, कि अच्छा इसके साथ कुछ गिफ्ट भी भिजवा दें, कुछ इस तरह कर दें। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने कोलैबोरेट किया था। आयशा शेख होती नहीं यहाँ, कलम आई प्लेट की, वो बाहर चली गई हुई है, उनके साथ वी लॉन्च्ड आवर मदर्स डे कलेक्शन, जो कि बाहर हो रहा था। दे वर डूइंग दीज मैक्रून बॉक्सेस विद फ्लावर्स। तो वहां से फिर हुआ जब मैंने उनके साथ, जब उस पर इतना हमें अच्छा, आई थिंक वी गॉट 100 ऑर्डर्स। जब मैं होम बेस्ड थी, तो मुझे याद है मेरा अभी भी डाइनिंग टेबल भरा हुआ है ऑर्डर से, और आई दैट वाज द फर्स्ट। उसके बाद तो फिर हर किसी ने फ्लावर बॉक्सेस और मैक्रून्स और वो डालना शुरू कर दिया, बट हमने जो वो डिजाइन किया, वो that was the first time there was a collaboration, and then we got to know, and वही फिर concept I took over to my floral shop, के not only florals but other gifting options as well, will they get the whole। अच्छा, आई थिंक इस पे हम लाइक इसकी बात करें कि कोलैबोरेशंस जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कभी भी कोलैबोरेशन करने या किसी और के बिजनेस को अपने साथ एसोसिएट करके प्रमोट करने से आपके रिस्क पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लोगों को ना यहाँ पे लाइक ज्यादातर होता है कि अच्छा हमने अगर किसी और का साथ पोस्ट भी लगा दिया, कुछ कर दी, तो बस हमारा तो खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक इट ऑलवेज हेल्प्स। और लाइक आपका मैंने माशाल्लाह देखा बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेशन कंटिन्यूस चलता रहता है कुछ ना कुछ। बिकॉज देखो आई थिंक मार्केटिंग में अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, ठीक है, वो भी करो, बट जो एक बिजनेस के क्लाइंट है ना, जो उसका फॉलोअर है, दैट्स वो एक ओरिजिनल उसका ऑर्गेनिक फॉलोअर है।
और वो दोज आर पीपल वो ट्रांसलेट हो सकते हैं इनटू सेल्स। एग्जैक्टली। तो जब आप कोलैबोरेट करते हो, दे आर गेटिंग एक्सपोजर टू योर मार्केट एंड यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू देयर मार्केट। एंड बहुत ऐसा हुआ मेरी, जब मैंने शुरू किया, मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से शुरू किया, बट लाइक आई सेड आयशा शेख तब बहुत एस्टैब्लिश थी। मतलब इनकी फॉलोइंग थी, उनका सब कुछ था, एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। आई थिंक अब कोलैबोरेशन से ना, वरना डूइंग अ बिजनेस इज रियली लोनली इन द सेंस कि आप अगर आपकी लाइक यू सेड इस मार्केट में और फ्लोरिस्ट मुझे एक कराची में मिली थी, वो भी उन्होंने फिर कम कर दिया था काम, बट इसी कोलैबोरेशन से यू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग। पर आप आइडियाज पे और इतनी चीजों पे आप काम करते हो, और वो चीज शायद आप अकेले लाइक कभी बना सको भी ना, सोचते ही रहते हो। लाइक आई थिंक हमारी भी जब कोलैबोरेशन हुई थी, तो अब मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकती थी, तो मैंने आपको भी जिस तरह रिक्वेस्ट किया था। तो आई थिंक कोलैबोरेशंस आर, मुझे तो हमेशा से ये रहा है कि लाइक वाई वी शुड सपोर्ट अदर बिजनेसेस एज वेल, जो हम अभी भी अपने स्टॉक भी करते हैं। आई वांट लाइक स्मॉल लोकल बिजनेसेस, स्पेशली काफी ज्यादा बड़े हुए होते हैं वुमेन रन बिजनेसेस, कि यार आए आप हमारे पास स्टॉक करें, सो दैट पीपल गेट दैट एक्सपोजर, उनकी भी सेल्स हो, हमारा भी फायदा है। आई डोंट थिंक ये चीज ना, मुझे आई वुड अगेन क्रेडिट आयशा, उसने मुझे मैं हमेशा ये होती थी कि यार केक मार्केट में तो इतना कंपटीशन है, लाइक हर रोज आप एक देख रहे हो कि एक नया ब्रांड आ रहा है, तो वो कभी ना उसने किसी को सिखाने से या वो डरी नहीं या वो कभी उसे, तो शी वाज लाइक ये जो मेरे हिस्से का रिस्क है ना, वो मुझे मिलना है। एग्जैक्टली। वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो मैं किसी की लेग पुलिंग करके मैं अपना रिस्क बढ़ा नहीं सकती, अगले का कम नहीं कर सकती, एंड दैट रियली स्टक विद मी। आई थिंक दिस इज अ रियली पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है ये बात ना, हमने ऑनेस्टली हर पॉडकास्ट में हमने ये बात की है, ताकि आप में से भी जो भी कोई सुन रहा है ना, सबको ये चीज याद हो जाए लिटरली। और माशाल्लाह अभी तक इससे पहले भी जितने लोग आए हैं और हमने बात की है, एक तो दूसरों की हेल्प कर रहे हो आप, तो भी कोई ना कोई फिर आपकी हेल्प करता है जब आपको जरूरत पड़ती है। लाइक मैंने तो ये चीज आई लिव बाय दैट, कि अगर आप किसी की मदद करो तो जब आपको जरूरत है तो अल्लाह ताला किसी को भेज देते हैं। और इसी तरह आप अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे, उनका थोड़ा सा फायदा होगा, थोड़ा सा आपका होगा, बट इट वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। जैसे में कभी वो वाली चीज नहीं होगी। तो अभी तक आपके लाइक अगर हम क्लाइंट्स की बात करें, तो अभी तक आपके सबसे अच्छा अगर कोई आपको याद हो क्लाइंट, क्योंकि आई थिंक कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो योर क्लाइंटेल इज योर लाइक सपोर्ट सिस्टम टू। तो कोई लाइक बहुत अच्छा फीडबैक आपको याद हो कि आपने कहा कि यार शुक्र, लाइक आई स्टार्टेड दिस इज व्हाई आई डू व्हाट आई डू। आई एम श्योर बहुत ज्यादा होंगे, बट लाइक कोई ऐसा हो जो दैट स्टक विद यू। यार पॉजिटिव फीडबैक्स आई थिंक जितने भी रहे हैं, आई कैन नॉट रिमेम्बर वन, बिकॉज मुझे जब स्पेशली लोग कहते हैं ना कि समटाइम्स ऐसे फीडबैक आपके लिए स्टिक विद यू जो आपको, ठीक है आप हमेशा, मुझे खैर होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, या एंड यू ऑलवेज डाउटिंग योर सेल्फ के आई डोंट नो एम आई इवन गुड एट दिस, या जो भी है, या उस तरह ना। तो कोई एक आप चीज बनाते हो ना, तो आप किसी को देते हो, तो वो क्लाइंट देवर लाइक एक दो क्लाइंट्स दे गश्ड ओवर इट इतना ज्यादा है, लाइक अच्छा रियली, मतलब मेरी एक बनाई हुई चीज को दे अप्रिशिएटिंग सो मच। जो एक मेरी, इट वाज प्रीटी रीसेंट, पुराने वाले तो कुछ भूल भी गए बड़े अच्छे, बट वन ऑफ माई क्लाइंट्स, यू नो, शी उसको भेजा, बट एक आध दिन बाद उसका मुझे वैसे ही मैसेज आया, इट वाज सच अ नाइस मैसेज, एंड शी इज लाइक कभी भी ना हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमें कुछ किसी को भिजवाने हैं, दे लिव अब्रॉड, तो यूर ऑलवेज वी नो वी आर सॉर्टेड। तो वो दैट वाज ना, आई वाज लाइक दिस वाज वाई, जो विजन था मेरा एक आउटलेट का और उस तरह, एंड दैट हैज ट्रांसलेटेड इनटू यू नो व्हाट आई वांटेड इट टू बी। और सिमिलरली लाइक आई एम श्योर कि ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको देख के आप कहते हो कि अब मैं कहाँ जाके अपना दीवार में सर मारूं। तो इस तरह का अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यार अगेन असल में ये वाली बातें हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी लाइक देख रहे हैं ना, तो उनको पता हो कि किसी भी बिजनेस के पास आप जा रहे हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, थोड़ा सा मार्जिन उनको देना चाहिए, हम जो इंसान है। तो हमारे यहाँ ना लोग बहुत सिनिकल है और अनफॉरगिविंग भी है। मेरे
इस तरह की बहुत उसमें ना फिर जब आप बिजनेस मतलब कर रहे होते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए, यू लर्न टू फिल्टर आउट पीपल. आई बिलीव इन के नॉट एवरी क्लाइंट इज अ फिट फॉर यू एंड यू आर नॉट अ फिट फॉर एवरी क्लाइंट. और एक सर्टेन टाइम के बाद यू शुड चूज योर क्लाइंट. एग्जैक्टली. एंड आप उनको बी वेरी क्लियर विद योर टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड आप उनको बता दो कि यार, एंड आप ये ना कहो कि यार अच्छा ये रेवेन्यू जा रहा है. आई थिंक वो दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो नेगेटिव पब्लिसिटी में, क्योंकि वो इट्स नॉट नेसेसरीली योर फॉल्ट. बिजनेस का बहुत दफा फॉल्ट नहीं होता. अब कुछ लोग हमारे, मुझे याद है बहुत पुरानी बात है ये, बट दैट स्टक विद मी क्योंकि उस ऑर्डर ने ना इट लिटरली ब्रॉट मी टू टीयर्स. और अब आप वो उसमें जैसा हमारा भी होता है कि अगर आप जो आपका वेंडर है वो कुछ डिलेज कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन हमारे मुल्क में हो जाती है, कभी फ्लड आ गया, कभी कुछ आ गया. I would say 95% of my clients now are very understanding. बट जब शुरू में नहीं पता होता था और इस तरह, तो इसी तरह कुछ डिलेज आए तो दे वर कॉन्स्टेंटली यू नो वो कह रहे. आई वाज आल्सो अपोलोजेटिक यार, हाँ हमारी तरफ से डिलेज आ रहे हैं. बट आई स्पेंट आई थिंक 2 दिन मैंने उस ऑर्डर पे लगाए एंड इन दी एंड मैंने लाइक आई सेड आई डू नॉट बिलीव इन यू नो ये फूलों में हेरा फेरी करना, इम्पोर्टेड कह के लोकल लगा देना. मुझे होते कि यार कोई और नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, तो ये वाली चीज नहीं करनी. तो उसमें सारे उनको फ्लावर्स लगा के जब सब कुछ भेज दिया तो दैट पर्सन वाज एडमेंट कि आपने लोकल फूल लगाया. एंड आई वाज लाइक यार मैं आपको हाउ डू आई प्रूव इट टू यू. आई वाज लाइक आप ले आए लोकल फूल एंड कंपेयर कर लें. एंड शी वॉज वेरी मतलब इतना रूड हो गई. और इस तरह अब देयर इज नो वे कि आप अगले को आप कहे जा रहे हो कि मे बी उनका बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, बट वो कांस्टेंट वो ना, एंड आई फेल्ट सो हेल्पलेस कि यार मैंने ये एक चीज नहीं की और वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रही है आपने लोकल फूल लगा के भेज दिए. तो दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग. और मैं तब यही मतलब फिर दैट वॉज अ लर्निंग लेसन एज वेल. फिर एक आध दफा इसे हम तो हमारा स्ट्रेट अवे होता है कि यार आपको फूल आप हमें भेजें, पिक्चर नहीं आपको ठीक लगा, वी विल रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट. आई थिंक ये हम सब का है, जितने भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ हम सब ने हमेशा ये दिया, मेरा भी है, आप 100% रिफंड ले लो, बट प्रोवाइडेड कि आप ये ना करो कि पूरा खाने के बाद आप मुझे कंप्लेन करो आके. जो भी मसला है आपने रिफंड लेना चेंज करवा. इस तरह क्लाइंट्स रहे हुए हैं कि वो कभी आपको पता लग रहा होता है ये किस लिए कर रहे होते हैं. और अब वो लोकल फूलों वाली वो अब मुझे इट स्टक विद मी कि यार मैं इतना डिसअपॉइंट हुई थी. तो आपकी इतनी मेहनत लगती है ऑर्डर्स पे, फिर कुछ ऐसा बंदा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग. और फिर हमने बस यही किया हुआ कि यार हम उनको ना बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि यार ये हमारी है, आपको हम वी मेक वेरी क्लियर वीडियोस बिफोर डिस्पैचिंग. हाँ कि हमने इस तरह से आपको भेजा है. इस तरह बहुत और अच्छा जो भी आपने बात की ना कि क्लाइंट्स आपको चूज करने चाहिए, मुझे लगता है लिटरली आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड इतने ज्यादा लोगों से कॉन्टिन्यूस डील करने के बाद, जिस तरह कहते हैं ना इंटरव्यू कोई देने आए तो पहले आपको 5 सेकंड में पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है. तो मुझे लगता है लिटरली मेरे साथ भी है, मुझे अगर केक्स का मैसेजेस आए ना मुझे पता चल जाता है इस बंदे ने ऑर्डर देना ही नहीं देना, इस बंदे ने बाद में तंग करना है, इस बंदे ने ये करना है. मैं आई थिंक ये स्किल भी आप सीख जाते हो फिर इवेंचुअली. पहले बता देती हूँ कि ये क्लाइंट फिनिकी है, ये इस चीज में ये करेगा तो ये चीज बहुत ख्याल से देख लेना और पहले देख लेना. और कोई भी ये पॉसिबल सिचुएशंस हैं दैट कैन अराइज. बिकॉज मैं हमारे साथ एक और चीज हुई लाइक यू सेड, अब हमारे ना ये होता है कि पॉजिटिव फीडबैक कोई नहीं देगा. मतलब जाके नोबडी वुड राइट कि वी हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन ऑन गूगल या जो भी. अगर नेगेटिव होगा ना फॉरेन जाएंगे, वो हर फोरम पे जाके लिखेंगे, दोस्तों से भी लिखवाएंगे. अब एक कोई इसी तरह थी, उनको ना उन्होंने कोई रिफंड उनका था, तो वो रिफंड हमारा प्रोसेस हम कर रहे थे. उन्होंने कहा जिस उन दिनों बहुत बिजी डेज थे, उनको कहा कि हाँ आपका रिफंड हो जाएगा. उन्होंने क्या किया कि जो है पता नहीं वो रिफंड किस चीज का था या क्या था, वो सारी फैमिली ने दे डोंट रियलाइज कि यार ये चीज बिजनेस को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती है, स्मॉल बिजनेसेस को. अच्छा सारी फैमिली जाके जी वो सेम रिव्यू डाल रही है उस पे. अच्छा उनको रीच आउट भी किया कि यार आपका प्रोसेस हो रहा है, उनका प्रोसेस मना तो नहीं किया. एग्जैक्टली. और वो जिनसे बात हो रही थी ना उन्होंने नहीं रिव्यू डाला, बाकी सबने. अच्छा उनको वो तो क्योंकि वो फिर आप उनको अगर एंड में कह देती कि मैं आपको रिफंड नहीं दूंगी तो कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. तो और हमने करना भी नहीं था, बट उनको यही रिक्वेस्ट की कि यार आपको
प्रोसेस हो रहा है और हो भी गया उनका प्रोसेस, उनको स्क्रीनशॉट वगैरह चली भी गई है इस तरह। उनको यही कहा कि यार ये जो आपके पूरे खानदान ने अब ये डाले हैं आप ये हटवा दें या उस तरह, बट दे डिडंट। और उनको फिर यही हम कर सकते हैं कि हमने वो सारी सिचुएशन नीचे लिख के ताकि अगर कोई देख ले वो रिव्यू तो वो उनको बताया। बट आई थिंक पता है मुझे लगता है ऑनेस्टली अब काफी सारे लोगों में शुक्र है, इतना सा शौर है कि वो अगर पढ़ते भी है ना फीडबैक तो भी उनको पता चल जाता है कि ये बंदे ने किस में, क्योंकि अगर किसी का एक्चुअली बुरा हो, नंबर 1 वो अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है। नंबर 2 उन्होंने कोई प्रूफ वगैरह कुछ लगाया होता है और उन्होंने साथ लिखा होता है कि वी रीच्ड आउट टू देम बट उनका रिस्पॉन्स भी गलत था। उसके बाद जो फीडबैक है दैट मेक सेंस, ठीक है, वो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बस ना बिजनेस को मौका दो, ठीक है, ना उनको लाइक और थोड़ा सा मार्जिन दो, ह्यूमन एरर का कुछ भी ना दो, लिखना शुरू कर दो, तो हम क्या करें फिर इस चीज? नॉट ऑल, लाइक आई सेड, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी क्लाइंटेल है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, बट मैं शुरू में मैंने ये फील किया कि हमारे लोग ना दे फील वेरी एंटाइटल्ड व्हेन दे पे यू। हाँ, उनका वो एटीट्यूड हो है जाता है आपको कि खरीद खरीद लिया लिया और उनका डेरिगेटरी एटीट्यूड Understand. एंड आई थिंक इसी वजह से दैट इज वन ऑफ द रीजंस। मेरी मदर खुद शी इज सो टैलेंटेड इन इंटीरियर डिजाइन एंड वो सारी चीज, मैं उनको बड़ा कहती हूँ यार आप इसको शुरू करें अपना बिजनेस, यू नो, स्टार्ट ऑफ किट ऑफ। तो वो कहती है मैं लोगों से नहीं, मतलब लोग बहुत रूथलेस हो जाते हैं एंड वाकई ये होता है वंस दे pay you, they think they've bought you and they can treat you like shit. बट मुझे ये बात नहीं समझ आती कि यही सेम लोग अगर लाइक उनको पता है ना कि हु ओन्स दिस बिजनेस, तो फिर वो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई रैंडम बिजनेस में जाए, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो बड़ा है, बट जिस बंदे ने लाइक उस तरह से बताया उनको वो कुछ भी नहीं कहते हैं ऐसा। वहां पे चाहे आपको गलत हो कुछ कहेंगे, अच्छा खैर है बेचारा स्टाफ है इसको मैं क्या, बट अगर आपको पता है कि किसका बिजनेस है, आगे बेशक बेचारा स्टाफ होगा, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ेंगे कि मुझे उसका पता है मैं उसको बताऊंगा ये और लिखना शुरू, लाइक मुझे और ये मुझे नहीं समझ आती कि इसकी क्या रीजन। लाइक आपको आइए तो आप मुझे भी एक्सप्लेन कर दें कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। आई थिंक वो लोग हालांकि यहाँ पे तो लाइक इतना ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी अगर स्क्रैच से कोई भी चीज बिल्ड करना इज नॉट एन इजी पाकिस्तान में ना धमकियां देना भी रिसेंटली आई हैड। अब जिस तरह आपको ही पता होगा हर बिजनेस की पॉलिसी होती है, हमारी पॉलिसी है कि यार ऑब्वियसली क्योंकि हमने स्लॉट्स बुक करने होते हैं, हमने जो फ्लावर्स हैं वो उस तरह से वी नीड टू कीप देम असाइड, क्योंकि हमारा एक इन स्टोर भी चल रहा है, हमारा ऑनलाइन भी चल रहा है, सो टू मेक श्योर कि वो कोऑर्डिनेटेड रहे। ये ना हो कि वहाँ जो हमने ऑनलाइन बुक किया हुआ है उसके बचे ही ना इस तरह, तो वी कीप दोज असाइड। तो हमारा होता है कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन बुक करें तो 50% एडवांस आपकी पेमेंट है एंड देन द रिमेनिंग यू पे एट द टाइम ऑफ जब आपको पिक्चर्स भेज दी जाए या जो भी, जो कि आई थिंक हर ऑनलाइन बिजनेस की एडवांस पेमेंट पॉलिसी होती है। तो और वो हमारी क्लैरिटी भी होती है कि यार ये चीज़ें इस तरह 50% एडवांस नॉन रिफंडेबल होता है और इस तरह से। तो इसी तरह अभी पिछले दिनों एक ऑर्डर आया और दे वर लाइक वी नीड दिस विद इन 30 मिनट्स, सो माय टीम दे पुट एवरीथिंग असाइड। जो लोग उनको कहा कि प्लीज आप इतनी देर बाद आ जाएं, वी आर करेंटली डूइंग एन ऑर्डर, इट वाज अ बड़ी अमाउंट थी उस ऑर्डर की, सो दे वर लाइक कि हम यू नो, तो उन्होंने फुल पेमेंट भेज दी। तो वो भी हम यार ये द ओनस इज ऑन यू, अगर आप हमें फुल पेमेंट भेज रहे हो, वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट, बट उन्होंने ना कहा मुझे विद इन 30 मिनट्स चाहिए। 10 मिनट्स बाद उनकी कॉल आ गई कि नहीं आप ये ऑर्डर रोक दें, हमें रिफंड कर दें। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आपको रिफंड होगा, बट आपको हमने 50% भी नहीं कहा, हमें यही था कि यार चलो विद इन 10 मिनट्स हुआ है, जो भी इनका इशू हो गया होगा बैक एंड पे, दो द रीजन वॉज प्रिटी स्टूपिड, बट हमने कहा ठीक है, हमने कहा हम 50% नहीं बट 20% या इस तरह रख के, क्योंकि हम वी हैड टू टर्न अवे क्लाइंट्स एंड वी हैड टू कीप दोज फ्लावर्स असाइड फॉर देम, सो वी वर लाइक कि ठीक है 20% इनकी डिडक्शन करके वील रिफंड देम। तो वो लोग पहुंच गए आउटलेट पे। अब जो है मुझे वो कॉलें आ रही हैं और अच्छा द थिंग इज कि फिर वही जो इंटाइटलमेंट वाली बात है, अब वो पहुंच गए आउटलेट पे एंड वो कोई खातून थी, वो अब वो कह रही है बदतमीजी कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता, मेरे साथ नहीं थी, तो मुझे मैंने अपने टीम को बहुत, क्योंकि एक आध दफा इस तरह हुआ है, तो मैंने उन्हें कहा कि यू गाइस विल नॉट से एनीथिंग, मतलब बदतमीजी नहीं करनी अंडर एनी सर्कमस्टांस, मुझे कॉल कर लो, कुछ कर लो, आगे से जो है ना सिचुएशन हैंडल। अच्छा खैर उन्होंने मुझे कॉल की,
तो उन्होंने सारा सिचुएशन के नहीं, उन्होंने ना बदतमीजी किया। मैंने कहा आई जस्ट इमीडिएटली, आई एम वेरी क्लोज बाय, आई एम गोइंग टू द आउटलेट, मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया हमारी पॉलिसी ये है, बट आपको हम वो फुली नहीं कर रहे, बट 20% डिडक्शन कर रहे हैं। एंड देन दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी कि जी मैं डीसी को कह के जी आपकी दुकान बंद करा दूँ। सही है। एंड दैट इज द पॉइंट। फिर ना अब वही बात है कि इतने साल बिजनेस के बाद आई लर्न टू पुट माई फुट डाउन, कि ये नहीं कि वो डर गए वो ये इस तरह, लेकिन कुछ बैटल्स फायदा नहीं होता नहीं होता। तो बट आई वाज लाइक कि यू कैन नॉट से दैट टू मी, कि मैंने कहा ठीक है आप बुलाएं, आपको जिस डीसी को बुलाना है आप बुलाएं, उनको भेजें कि वो मेरा आउटलेट बंद कराएं। एंड देन इस पॉइंट पे तो कहना चाहिए आपको, तो मैं अब ये भी नहीं दे रही, डीसी से कहेगा ले Exactly. जाइएगा मेरे से आके बात नहीं मैंने अभी कहा कि एंड देन ऑब्वियसली आई इंट्रोड्यूस माय हस्बैंड के, और आई टोल्ड हिम कि मुझे पता है डीसी कौन है, आप भिजवाएं। दैट मोमेंट आई फील शिट कि यार व्हाई डू आई हैव टू इवन मतलब से ऑल दैट, ब्रिंग ऑल दैट अप, मेरा बिजनेस है, आई डोंट वांट एनीवन एल्स इन्वॉल्व्ड, बट यू आर फोर्सिंग मी काइंड ऑफ सेट करनी पड़ती है, पता है, मतलब पावर कार्ड आप यूज कर, एंड देन वो बंदे की टोन ही चेंज होगी, नहीं आप गलत मतलब ले रही हो। मैंने कहा आपने मुझे ये बात कही, और ये बहुत ज्यादा होता है, और आई थिंक ये करना बहुत जरूरी भी होता है काफी सिचुएशन में। लाइक हम बहुत पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा है, बट आप हर इंसान की एक लिमिट होती है। ठीक है, आप बिजनेस औरत कार्ड भी नहीं आप प्ले कर रहे हो, आई एम डीलिंग विद यू प्रोफेशनली, बट आप यू कैन नॉट पुल दैट वो पावर कार्ड जो पाकिस्तान में, तो मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, ठीक है। फिर पता है मुझे ना आपके ये जो आप बता रही थी कि उन्होंने कहा अर्जेंट है चाहिए और फुल पेमेंट भेज दी, मेरी एक बहुत लाइक मजे की क्लाइंट है, आई लव हर, ठीक है, लेकिन ना वो पता क्या करती है, वो मुझे ना हर दफा सुबह मैसेज आएगा, ये मेरा ऑर्डर है, पेमेंट मैंने ट्रांसफर कर दी है, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज द अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट ट्रांसफर कर दी है, अब मैं 7 बजे तक नहीं 6 बजे तक मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, 7 बजे मुझे ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अब मैं केक देख भी पहली दफा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि वो बन सकता है नहीं बन सकता। फिर मैंने उनको थोड़ा पोलाइटली बताया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, ठीक है, कि पेमेंट भेज दिया तो अब वो बन जाएगा, जो चीजें मेरे पास है ही नहीं मैं आपको सेम डे में बना के कैसे दूं। तो बड़े मजे मजे के लोग मिलते हैं, एंटरटेनिंग भी होते हैं। हाँ, अच्छे एक्सपीरियंस भी बहुत, आई थिंक ये तो पार्ट ऑफ वो है। मुझे लगता है हम बहुत लाइक कस्टमर उसमें हमारी कॉन्वर्सेशन का वो फ्लो चला गया। बट आप अगर मुझे बताएं कि लाइक अभी मतलब माशाल्लाह बिकॉज यू हैव रिटर्न फ्रॉम जापान, तो आप लाइक वहां से और क्या नई चीजें सीख के आई, बट यू वुड लाइक टू लाइक इंट्रोड्यूस जो आपके आउटलेट पे हम देखें डिफरेंट चीजें। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न, एक तो वही आउटलेट मैंने उससे उधर से इंस्पिरेशन लेके आई एक्सपैंडेड दैट, एंड वही हमने गिफ्टिंग ऑप्शंस एक्सपैंड की अपनी। एक जो वहां से मैंने चीज एक इबाना स्टाइल हमने सीखा है, मैंने सीखा है, तो वो मुझे है कि मैं अपनी टीम को उस पर ट्रेन करूँ और वो हम इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग अ लॉट इन पाकिस्तान। मतलब कर भी रहे हैं तो इतना कमर्शियल लेवल पे नहीं हो। तो वो एक चीज़ है जो हम वे प्लानिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग। एंड दूसरा जो मैं उधर चीज़ देख के आई और मुझे बहुत फील होता था जब मैं खुद भी सीख रही थी ना फ्लोरिस्ट्री, देयर आर नो प्रॉपर वर्कशॉप्स और स्कूल्स इन पाकिस्तान रिलेटेड टू फ्लोरिस्ट्री, नहीं है बिल्कुल। एंड ये फूलों के साथ काम करना, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि आप कोई ऐसे सीखने वाली, बट सीखते हुए, बट इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। तो अभी हमने बल्कि इस्लामाबाद में भी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, बट मेरा दैट इज वन ऑफ द विजन्स के जो नई चीजें जो सीखी हैं उधर से वो लेके भी आए हैं। देयर आर ट्रेंड्स के अच्छा फ्लोरल्स किस वो छोटी छोटी चीजें ना, उनकी क्यूट सी चीजें होती थी, क्यूट सी से बुकेज होते थे, वो हम इंट्रोड्यूस कराए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेज अरेंजमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन ऑल्सो दिस like workshops and classes and where you're taught floristry properly, because I know like there are a lot of people over the years who have reached out to me कि आपने कहाँ से सीखा है, क्या है, because floristry learn करना बहुत expensive है। Of course it is even one workshop। यहाँ तो हम ना, मुझे ये होता है यार बेशक I want to impart that knowledge even at like बहुत कम कॉस्ट में, बट वो एक कल्चर लाता। पता है मैं लाइक आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट बहुत पहले, आई रिमेम्बर एक शेफ की थी, तो वो ये कह रहे थे कि सिखाना वैसे भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब आप लोगों को सिखाते हो ना तो फिर आप उस चीज को पीछे छोड़ के और ग्रो करते हो खुद। अगर आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ कि मैंने किसी को सिखा दी तो मतलब मेरा तो काम, तो सिखाते रहो, साथ साथ खुद नहीं सीखते रहो। एंड आई थिंक यार उसमें ये होता है कि आप जब किसी को सिखा रहे हो
आपका स्किल बढ़ एग्जैक्टली, कि आप वो चीज बार बार कर रहे हो। एंड अगेन जो रिस्क आपका लिखा हुआ है वो किसी को सिखा के कम नहीं होगा। आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो आप किसी को नए को सिखाओगे, बेशक वो आज इंडस्ट्री में अच्छी, बल्कि वो आपको याद भी रखेंगे सारी जिंदगी और मजीद प्रमोट भी करेंगे। और आई थिंक वो आप पाए का साइज बड़ा हो रहा है ना, हाँ, मार्केट बड़ी हो रही है वो, exactly. जब आप when you're teaching people and उस चीज का ट्रेंड आ रहा है, तो वो I don't think there is any harm in teaching it. Yeah. वो चीज मुझे है कि to bring that culture here, कि floristry at an affordable rate, something people can afford and people can नहीं, आई थिंक लाइक यू शुड डेफिनेटली लाइक डू। मुझे लगता है मैं ज्वाइन कर लूंगी और भी करे। मुझे नए नए स्किल सीखने का शौक वैसे ही बहुत ज्यादा था, मतलब बिजनेस कहाँ भी करो आप तो। फ्लावर्स के साथ काम करने में वैसे ही बड़ा मजा आता है, वो स्ट्रेस आपका एक स्ट्रेस रिलीजर होता है। मेरे बिकॉज आई हैव किड्स, सो व्हेन आई कम टू द आउटलेट इट्स लाइक ऑटोमेटिकली कि वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन थेरेपी, वो थेरेपी होती है मेरी खुद। अच्छा, even like because you were there for you were like in Japan for 2 years I think, 1.5 year. 1.5 year, तो फिर आपका like business पीछे कैसे ऑटोमेशन पे चलता रहा, या किस तरह like how were you able to trust somebody with that? अगर इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि अगर कोई भी To business be honest, when I was going, I had planned on selling the business. And क्योंकि बताता हर कोई ये है ना कि आप अगर बैठे हुए नहीं होगे तो कुछ चलेगा नहीं चल सकता। और उससे पहले क्योंकि ये हो चुका था कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ ये है कि जब से मैंने आउटलेट खोला ना, आई थिंक आई ओपन द आउटलेट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय ट्विंस, इन 2 या 3 महीने बाद आई वाज ड्यू। तो ट्विंस हुए, उसके चक्कर में मैं आती थी बट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकती थी, और उस तरह फिर मैं माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू गिलगित। जब फाइनली मुझे हुआ कि अच्छा द किड्स आर वो थोड़े हो गए हैं स्टेबल, ही वाज पोस्टेड टू गिलगित। गिलगित से वापस आए 4 महीने बाद जापान। जब जापान था ना, गिलगित या कोई भी चीज ऐसा होता है कि आप अच्छा सर पे तो हो ना, मैं मतलब क्रिएटिव, मेरा मेन काम उसमें क्रिएटिविटी था कि कोई नई चीज हर दफा लाना, उनको गाइड करना, उनको ट्रेन करना, बाकी सारा। बट जापान जाता है लाइक आई एम मूविंग अवे इतना दूर, ये इट विल बी ड्रिवन टू द ग्राउंड, एंड मैं नहीं चाहती कि मैंने जो चीज क्रिएट की है वो ना सस्टेन कर पाए और उसके एक बुरे नोट पे एंड हो। तो आई हैड पुट दिस अप फॉर सेल। like you did put it up, या फिर सोचा आपने? सोचा भी, and I had talked to a company that sells businesses. अच्छा, तो उनसे मैंने evaluation वगैरह सब करवा ली, सब कुछ अच्छा। हो गया, and I told them कि हाँ you can put it up to your buyers या जो भी, and I'm willing to sell it off. तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कर भी दिया। बट अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने भी ना उसको बहुत परसू नहीं किया कि अच्छा अगर सेल करें, या हर जगह पोस्ट नहीं किया, सिर्फ उनको कहा। क्योंकि मुझे ना फिर सब ना कहना शुरू हो गए, जो मेरी फैमिली थी, मेरे फादर थे, कि चल जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो। मतलब या तो हो ना कि आप नुकसान में जा रहे हो, और हम फाइनेंस में भी पढ़ते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें इवन अगर आप जब तक ब्रेक इवन कर रहे हो और आपकी वेरिएबल वो कॉस्ट फिक्स हो रही है, मैं तो आई वाज प्रॉफिटेबल। तो उन्होंने कहा कि फिर क्यों बंद कर रही हो? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो माय फादर सेड कि आई विल हैंडल द अकाउंट्स, एंड जो वो लड़का था, मेरी टीम थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि अभी लोग उसको ज्यादा एसोसिएट करते हैं। मुझे लगता है सब जानते होंगे, जो आउटलेट पे कोई आता है ना, तो वो देर लाइक कि ओ अच्छा वो नदीम भाई होते हैं, तो वो मेरे से पूछ रहे थे आप कौन है ना, मैं फोन उठाया, कहती यहाँ तो भाई होते थे पहले। मैंने कहा मैं ओनर हूँ। तो वो माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ये कि आई गॉट 1-2 लोग मुझे ऐसे मिल गए कि जिन्होंने चलाया, जो कि मैं कहूंगी वो लक है और अल्लाह की तरफ से, वरना नहीं मिलते ऐसे लोग जो चला सकते हैं। और आई एम श्योर उनके लिए तो लिटरली आपके सारे क्लाइंट्स वाउच कर सकते हैं। एंड बड़ा अच्छा उसका भी बड़ा था कि उसने मुझे कहा कि मेरे उसे पता लगा ना कि बाजरी शायद बंद कर देंगे, तो ही इज लाइक आप बंद भी कर देंगे तो मैंने आपके साथ ही काम करना है, किसी और कैपेसिटी में रख ले, मैं कहीं और नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है ये, लेकिन उस पे भी होता है ना, द वे यू ट्रीट देम, एग्जैक्टली। हाँ, आपको लाइक आगे से करते हैं, क्योंकि मैं मतलब हम उनको फिर हेल्प को आप उस तरह ना ट्रीट, बिकॉज बाकी वो आपका वो फ्रंट एंड पे वो सब कुछ चला रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं कि यार कोई मसला है तुम लोगों के घर का कुछ भी, तो यू लुक आउट फॉर देम। एंड जो है वो
उसका भी वो दे पे यू बैक, और अच्छे लोग जो होते हैं वो आपके साथ दे स्टिक थ्रू आउट। तो उसने पीछे से क्या मैं हैरान होती थी पहले, बल्कि मैंने सोशल मीडिया मैनेजर वगैरह रखे हुए थे, वो थे, बट वो यही था कि कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छे मिलते। तो फिर आई वाज लाइक नहीं, मैं ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ टाइम डिफरेंस था। हाँ तो हम यहाँ के तो वो 8 यहाँ से अगर 9 10 बजे आए, उधर 2 बजे होते थे। तो फिर जब मैंने देखा कि यार एक दो मतलब चीजें पकड़ी गई, एंड आई थिंक वो लाइक अगर आप उस चीज पे रेफर करें तो मुझे लगता है डबल क्रॉस करने वाले लोग तो हर हर तरीके जगह से होते हैं। आपको And then I मिलेंगे। realized यार, learn जब with मुझे time। हाँ उस पता लग गया ना कि यार ये बंदा दे आर अफेक्टिंग माई सेल्स हाँ। इन अ वे के मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं खुद करूंगी। एक तो नुकसान पहुंचा रहे हो और फिर समझ फिर हो कि आप बहुत बेवकूफ हो। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा ये होता है, और आप उनको लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट करते तो आई डोंट डू इट अनलेस आई हैव प्रूफ। सो व्हेन आई गॉट प्रूफ आई वाज लाइक नहीं, आई डू इट ऑन माय। अच्छा मुझे लगता है लाइक पर्सनली है कि क्योंकि मैंने भी शुरू में ना, आप बड़े फॉरगिविंग हो जाते हैं और इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आपकी हर किसी के साथ, बट इवेंचुअली यू लर्न कि यू हैव टू लेट पीपल गो। एंड मैं बार बार कोट करती हूँ उस तरह की चीजें बिकॉज मैं बहुत सुनती हूँ बाहर के लोग और जिन्होंने बिजनेस किए हुए। तो आई थिंक लाइक आई वाज लिसनिंग टू दिस पर्सन एंड दे वर लाइक कि आपकी बिजनेस की सबसे बड़ी कॉस्ट वो होती है जब आप एक एम्प्लॉय को, आपको पता हो कि आपको निकाल देना चाहिए लेकिन आप रख ही रखो उसको। एग्जैक्टली। तो इस तरह के डिसीजंस फिर आपको आई थिंक लेने पड़ते Financial cost होती है उसकी। हैं। I've suffered that हाँ financially. हर तरीके की कॉस्ट होती है। और मुझे ये था कि मुझे रोज कॉल करके मेरे अब्बा से डांट पड़ती थी, और मैं रिश्ता खत्म करो किसी का, निकाल दो। हाँ वो ये कहते थे कि उनको नजर आ रहा था, ऑफ कोर्स मुझे ये भी भी नजर आ है रहा था, और बट मैं कहती थी मेरे पास प्रूफ नहीं है, और वो बंदा आपको ना फिर वो बातों में डाल लगा देता है इस तरह। तो फिर लगता है कि यार नहीं, फिर जब मुझे हो गया एक चीज अश्योरिटी एंड आई न्यू आई हैड एविडेंस बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी अनफेयर टू एनीबॉडी। तो फिर आई वाज लाइक नहीं। और वो अब मैंने देखा वाकई जब आप खुद उसमें, कोई भी आपके बिजनेस को उस तरह नहीं ट्रीट करता जिस तरह आप अपने बिजनेस, बिकॉज इट्स योर ब्रेन चाइल्ड, इट्स योर बेबी। तो आप जितनी मेहनत उसमें कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। और जो ये लड़का भी है, ये मेरे हाल से इतनी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि इसने मेरे साथ ही ग्रो किया। मैंने आपको बताया था ये स्टार्टेड मेरे घर पे जब था, तो ही वाज मेरे साथ घर पे हेल्प करता था, हेल्पर था। तो इस तरह उस चीज को ना देखा है, तो इसके लिए भी द फ्लोरिस्ट वही चीज है जो मेरे लिए है, बिकॉज इसने देखा है मेरी स्ट्रगल को, इसने उसी टाइम से मेरे साथ सीखा है। तो वो आई थिंक वो हमारे लिए जो हम जितना कर सकते हैं, कोई दूसरा करते हैं ना उस बिजनेस को करते हैं, कोई दूसरा बाहर से आते हैं जस्ट टेक इट एज अच्छा ठीक है, वो चीजें सीखो, चीजें देखो, साइड पे अपना काम शुरू कर दो। तो अच्छा अभी बिकॉज सिंस यू मेंशन्ड योर डैड लाइक क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, तो आप लाइक आप क्या लगता है घर की सपोर्ट का कितना इस चीज में था टू वेयर यू आर टुडे? यार आई थिंक फॉर वुमेन सपोर्ट के बगैर आप आई थिंक कर सकते हो, बट इट्स अ मिलियन टाइम्स हार्डर। ऑफ कोर्स। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि सपोर्ट सिस्टम हमेशा से बहुत स्ट्रांग था, और द वन पर्सन आई थिंक हु बिलीव्ड इन मी, मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट, बट ही वाज ऑलवेज द डेविल्स एडवोकेट। वो भी जरूरी होता है, वो जरूरी होता है कि अच्छा ये हो जरूरी सकेगा, ये कर लोगी, तो ही वाज ऑलवेज द डेविल्स एडवोकेट। बट कभी ये उन्होंने मेरे लिए डिलीवरीज भी, वो जाके डिलीवरी बॉय बने होते थे और वो सारे। बट मेरे फादर ने ही वाज लाइक करो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। और जब आउटलेट ओपनिंग पे था तो कोई इतना कन्विंस था कि नहीं था। माय फादर वाज लाइक हाँ शुरू कर दो, खोल लो आउटलेट। ही वेंट विद मी, शॉप्स देखी, ही वाज लाइक ठीक है। मेरी मदर का भी बहुत था, उन्होंने जो सारा वो इंटीरियर, मैंने कोई नहीं हायर किए थे इंटीरियर्स वगैरह, सारी अम्मा आती थी, वो देखती थी वगैरह। तो सारी माशाल्लाह लाइक व्हेन यू बोथ वर देयर, तो पीछे से लाइक फिर मैनेज भी करते हैं। मेरे अब्बा ने कोई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखें, वो मामा ये कहते हैं वो बेसमेंट में सारा सारा दिन बैठे रहते थे। एंड ही यूज्ड टू मतलब, और मुझे टेंशन नहीं होती थी, वो मुझे कॉल करके कह रहे तुम्हारे इस क्लाइंट की पेमेंट नहीं आई तुम्हारे अकाउंट में, और मैं फिर जाके देखी थी कि ओ हाँ। अच्छा लगता है, आई कैन ऑल्सो रिलेट विद दैट बिकॉज मेरे घर में भी इसी तरह है। मेरे फादर जो है वो ये पैसे अलग कर लिया करो, ये ऐसे कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो। हम कहते हैं सही है, हर चीज पर उन्होंने नजर रखी भी होती है कि किस तरह से हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्वियसली जॉब। आई थिंक ही कीप्स मी ऑर्गेनाइज्ड, वरना मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूं, इनिशियली तो बहुत ही ज्यादा थी।
ट्रस्ट कर लिया, किसी ने स्क्रीनशॉट भेज दी, फिर एक आध दफा ऐसे हुआ भी क्या, वो फेक स्क्रीनशॉट्स हैं या जो भी है, तो मुझे कहते थे कि जाके देखो अपने अकाउंट में, और वो जब मैं नहीं देख रही होती थी ना, वो बेचारे एक एक मैच कर रहे होते थे वो इस तरह। तो जब मैं वापस आई तो उन्होंने जब मुझे अकाउंट्स हैंड ओवर किए तो वो यही कहते कि अब इनको दोबारा जीरो पे तो अपनी हरकतों से मेरे बहुत रिलेटेड मतलब मुझे लगता है कि मेरे फादर ये देखेंगे तो कहेंगे देखा मैं भी तुम्हें कहता हूँ। यही होता है वो, आई थिंक वो देर वेरी, उनका एक्सपीरियंस भी होता है ज्यादा, और बड़ी जरूरी होती है ये सपोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मिली, व्हिच इज आई थिंक वाज अ बूस्टर फॉर माय बिजनेस एज वेल। तो आप अगर अभी कोई आपको देख रहा है, बेशक वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एज अ यंग गर्ल इन पाकिस्तान, लाइक व्हाट वुड बी द 3 एडवाइसेस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम? यार एक तो आई एम रियली हैप्पी, अभी मेरे रिसेंटली इतने लोगों से बात हुई है ना, एंड ऑल ऑफ देम आर वुमेन, मतलब मैं इतना खुश हो रही थी, मैंने कहा पहले ना आई फेल्ट क्रेजी, नहीं होता था। हाँ लोनली भी स्पेस में, अब मुझे लगता है कि मेरी जिससे बात होती है वो लड़की बिजनेस स्टार्ट कर रही है ना, तो आई थिंक वो इन्वायरमेंट शुक्र है वो क्रिएट हुआ कि आने लगी हैं बंदियां बिजनेस में। बट आई थिंक एडवाइस जिस तरह हम बात कर रहे थे, बी प्रिपेयर्ड, लाइक रिसर्च अपना, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, आजकल तो मैं कहती हूँ कि कंटेंट और उसकी कमी ही नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत कम है बिकॉज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल एट हैंड, जो ऑनलाइन जीपीटी है या आपका फेसबुक, एक्सेस बहुत आसान हो गई है। अब आप बी प्रिपेयर्ड, अपना रिसर्च करके जाए, ताकि कोई ये ना सोचे कि बाजी को बेवकूफ बना, हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, बाजी को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। और एक ये, एंड आप इंटिमिडेट ना हो, मेल डोमिनेटेड मार्केट भी है, जस्ट अपना, अगर आप, और पीपल रिस्पेक्ट दैट व्हेन यू आर नॉलेजेबल, दे नो कि यार अच्छा ये अगला वो बीएस नहीं कर रहा, they know their stuff, then you will get the respect. So पहला एडवाइस तो ये है कि be prepared. Second एडवाइस ये है कि यार don't think a lot, शुरू कर दो, मतलब डालते मेहनत करते हो आधा काम आपको हो जाता है अगर आप स्टार्ट कर दो, jump into it, you don't have to invest a lot. मैंने कोई इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं किया था, अपने थोड़ी बहुत सेव हुए वो चीजें ऑर्डर करके इस तरह, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए थी, मोटिवेशन चाहिए। आई थिंक ये वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को, क्योंकि स्पेशली अब अगर मुझे या आपको देखे ना तो उनको जून नजर आएगा या द फ्लोरिस्ट की शॉप नजर आएगी, वो ये नहीं सोचेंगे कि जो पिछले 10 साल या 5 साल घर से बैठ के इन्होंने एक ऑर्डर लिया जिसमें क्लाइंट बेस बनी, टेस्ट किया कि अच्छा इसकी डिमांड है नहीं है, फिर इन्होंने सोचा कि अच्छा जाके, तो ये चीज नहीं किसी को नजर आती। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक जिस, अगर आप खोल सकते हो माशाल्लाह तो फिर लाइक खोलो एकदम से, बट अगर आप नहीं भी खोल सकते तो स्टार्टिंग शुरू कर दो। I've seen so many and develop soft skills. हमें लगता है कि यार डिग्री अच्छा ये होनी चाहिए फलानी। I've seen doctors, अब तो कंटेंट मार्केट है यार, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, आप सॉफ्ट स्किल्स अपनी एक्वायर करें ना, आप कुछ भी शुरू कर दें। आप, मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरतों में वो क्रिएटिविटी और वो तो नेचुरली डाला होता है, देयर सो मच, आप बस इंस्टा पे जिस तरह हम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, देयर सो मच, हाँ आप चीज सीख सकते हो उससे, तो और स्किल डेवलप, हाँ आप, हम कहते हैं ना कि मुझे जिस तरह लगता था कि यार अच्छा ये मुझे सीखना पड़ेगा तो मैं कर सकती हूँ, आप सेल्फ टॉट हो सकते हो, देयर इज नो शेम इन बीइंग सेल्फ टॉट, सिर्फ मेहनत ज्यादा है। आप सर्टिफाइड कहीं से हो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें यह है कि ऑब्वियसली आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए, बट उसमें यह है कि आपको वो कोई प्रॉपर्टी सिखा देगा। सेल्फ टॉट में मेहनत ज्यादा है, बट आप कर सकते हो। मतलब बात ये कि अगर हम बहाने बनाते रहेंगे, खुद को एक्सक्यूज देते रहेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे कि ये होगा तो मैं वो करूंगा। जिसने करना है वो जहां पर है वहां पे शुरू कर लेता है उसमें, तो ये आई थिंक आपके इन बिल्ट है। The biggest hurdle for an entrepreneur या somebody starting a business is themselves, कि वो जो वो thought है कि यार मैं शुरू करूँ या ना करूँ, you get over that hurdle and बाकी सब हो जाता है। और आपके ख्याल में अभी लाइक पाकिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है यंग लोगों को कि वो शुरू करें और इस तरह से, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा, मुझे ये चीज, मैं उससे नहीं किसी बात की, मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है जिस तरह आप बता रही है ना, यू हैव हेल्प, जो सब कुछ वो मैनेज करते हैं, बट एट द सेम टाइम he does not have the resources or the capacity to reach the customers. ऊपर वाली चीज आपकी है, तो मुझे लगता है हम अभी, हमारी जो सारी जनरेशन है, हम बीच का एक ब्रिज है जो स्किल्ड लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें, सारा कुछ उनको साथ इन्वॉल्व करें, बेशक पार्टनरशिप्स करें जिस भी तरह, बट मिडिल पर्सन लाइक हमें बन के करनी चाहिए चीजें। आई थिंक the biggest benefit जो एक इकोनॉमी के प्रोवाइड करे वो एंटरप्रेन्योर्स है, बिकॉज दे क्रिएटिंग जॉब्स, वो उन लोगों के लिए, अभी जिस तरह
आप वो मार्केट में चीज फ्लो में लेके आ रहे हो ना, वो जब आप इवन एक वेंडर से चीज उठा रहे हो तो उसकी भी वर्कफोर्स है, वो डिप्लॉय हो रही है जब आप कुछ बनवा रहे हो, कुछ कर रहे हो। अभी जिस तरह हम लोगों का एक आध प्रोजेक्ट हम इस तरह भी सोच रहे हैं कि जो रूरल एरियाज में औरतें होती हैं, हाँ। देयर आर थिंग्स कि हम उनको एंगेज करके लाइक CSR एज अ CSR प्रोजेक्ट उनसे चीजें बनवाएं एंड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स गो टू देम। Yeah. तो एज एन एंटरप्रेन्योर यू, अब वो गांव में जो बैठा है दे हैव दैट स्किल But बट दे डोंट हैव एक्सेस टू द मार्केट। Exactly. तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में लो कॉस्ट लेबर बहुत ज्यादा है Exactly. एंड दे नीड, बजाय इसके कि वो सड़कों पे मांग रहे हैं, इसलिए आप उनको Exactly. अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। एंड आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन, अब ये क्रोशे मार्केट जो है बन रही है काफी, इसी हाँ, वजह से डेवलप हो रही है। उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें और औरतों को एम्प्लॉय कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आई थिंक ये होना चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि इसी तरह यू कैन लिफ्ट दोस पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी एंड वो अपनी आप पॉपुलेशन को, क्योंकि आप हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। That is exactly what I was thinking. हाँ, कि आप नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि इतनी, हमारा सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट कैसे, यूर पुअर इकोनॉमी, आपके इतने मसले हैं, तो आप वो करें जो आप कर सकते हैं। तो पर हर चीज में कोई ना कोई वे होता है, आप निकाल सकते हो। एग्जैक्टली, देयर आर लॉट। कोई मैं कह रही हूँ, जिस तरह आप हमारे ना हाथ का काम बहुत है पाकिस्तान में, जो कढ़ाई है उसकी बात, अच्छा नहीं वैसे जनरली हाथ का स्किल, फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट, बीडिंग है, पॉटरी है, और आहिस्ता आहिस्ता डेड होती जा रही है बिकॉज वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे कस्टमर तक, और हम बीच वाले लोग सो रहे हैं सारे। जापान है, वहां से मैंने ये भी चीज, वो हाथ के काम को, कोई भी चीज है ना, उनकी हैंड कार्विंग है, वो इतना एक्सपेंसिव सेल करते हैं बिकॉज दे वैल्यू दैट। तो आप अभी इवन मैं तो कहती हूँ हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, आप वो एक्सपोर्ट करो। मतलब जो हमारे ये हैंड कार्व्ड वुडन चीजें होती हैं, बाहर तो दे सेल फॉर मतलब $1000s वो लोग स्पेंड करते हैं। वहाँ पे हर चीज का है, वहाँ पे कितने एक्सपेंसिव है, वहाँ केक्स कितने एक्सपेंसिव है। मैं हंसती थी कि आई वाज अ फ्लोरिस्ट, बट मैं वो जाती थी ना उधर एक लिली की स्टेम लेने, तो वहां लाइक अच्छा यार, क्योंकि वो उनको होती है कि हमने उगाया है इसको प्रॉपर, वैल्यू करते हैं लोग उस चीज को। तो आप उस, अगर आप उस मार्केट को रीच कर सकते हो, यू आर एजुकेटेड and you have the resources, तो engage those people and engage, मतलब आप उनको, I think that is the service you can do for your population. Definitely. और ये अगेन यही वाली बात है कि हम, मुझे तो लगता है हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, Exactly, ठीक है, मतलब इट्स नॉट इवन कि मुझे शौक है मैंने पैसे बनाने, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर हमें इतनी प्रिविलेज और शऊर दिया है कि हमें पता है कि हम कर सकते हैं। यार अब वो जमाना रहा भी नहीं है कि सिंगल पर्सन इकोनॉमी वाला, सिंगल इनकम हाउस होल्ड वाला, एग्जैक्टली, जो हालात हो गए हैं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड देयर इज नो सिंगल इनकम हाउस होल्ड्स अगेन ऑब्वियसली, बट अगर आपके लिए, एंड कॉर्पोरेट जॉब्स आर नॉट द ओनली सोल्यूशन। कॉर्पोरेट जॉब्स वैसे भी आपको, ये मुझे लगता है बिजनेस ज्यादा ट्रेन करता है, बट कॉर्पोरेट जॉब आपको मेंटली मुझे लगता है बिल्कुल ही ट्रेन कर देती है। बिजनेस में ना आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हाँ, आपको वो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा फ्रीडम होता है टू लाइक, और उस दिन वही अगेन उस दिन कोई बात होती है कि स्पेशली लाइक वुमेन, आई थिंक 9 to 5 से बहुत बेहतर है कि आप बिजनेस करो अपने टर्म्स पे, अपने टाइम पे। आई कैन गेट अप एनी टाइम एंड गो टू माय किड्स व्हेन दे नीड मी, या उस तरह। ऑब्वियसली बिजनेस के इट्स अ 24/7 थिंग, कोई ऑफ टाइम नहीं है आपका, बट देन अगेन एक आपका फ्रीडम एक होती है, एंड ऑल्सो आई थिंक अगेन इट इज मच, कॉर्पोरेट जॉब जिसको करनी है ऑब्वियसली वो उसका वो है, पैशन है या पैशन है, बट अगर आप बिजनेस कर सकते हो ना, मेरे ख्याल से बरकत बहुत होती है बिजनेस में, अपने काम में जितनी बरकत है, एंड देन आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द इकोनॉमी। और फुलफिलमेंट भी बहुत होती है कि आपके लाइक आप जरिया बन रहे हो और कितने लोगों के पैसे बन रहे हैं उस चीज से, घर चल रहे हैं। बहुत एक वो उसे वाकई अच्छा लगता है कि यार आई कैन हेल्प, आई कैन एंगेज सो मेनी पीपल, एक मैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक हमारी पॉपुलेशन और हमारा जो डायनामिक है कि हाईली वो जो हमारी लेबर है, आई थिंक आप ऐसी स्किल्स भी ना जो थोड़ी बहुत, मैंने कहा कि सिखा दे, मैं तो लोग ढूंढ रही होती हूँ, मैंने कहती हूँ आओ मैं सिखाऊंगी और मेरे पास रह के काम करो, तो वो भी सीखने वाले बने और आप उनको एम्प्लॉय करें। आई थिंक दैट्स नीड ऑफ हमारा कंट्री। पता, और जो आप अभी बात करी थी कि मुझे लगता है लाइक फॉर वुमेन हम जनरली नेचुरली हम वैसे मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, ठीक है। बिजनेस क्या है, बिजनेस इज मैनेजमेंट, घर में आप इतनी चीजें मैनेज कर रहे हो, चलो हाउस हेल्प को ही ले लो, ठीक है, आप हाउस हेल्प में हर चीज को मैनेज कर रहे हो,
तो बिजनेस भी आप वही बात है कि अपनी कंफर्ट जोन से ऑब्वियसली थोड़ा सा निकलना टाइम पड़ेगा मैनेजमेंट हमारे हाँ। वो हम टाइम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग हर चीज को जगह साथ साथ करना हम तो घर पे भी हाँ। अकाउंटेंट्स बने होते हैं, हम हर चीज बने होते हैं, अपॉइंटमेंट्स मैनेजमेंट ये वो। तो जब आप शुरू करते हो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा हाँ लाइक हाँ, ये तो उसी and तरह है वो जनरली उसी तरह है। और वही मैंने कहा कि अभी औरतें आई थिंक ये रियलाइज भी कर रही है, बट बिजनेस अगेन वो जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं इन द सेंस के हर कोई नहीं बाहर निकल के भी बिजनेस कर सकता, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, यू डोंट नीड टू गेट आउट टू डू बिजनेस। आप ऑनलाइन बिजनेसेस चलाएं, आप घर बैठे बैठे होम बेस्ड और वो वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, मतलब आप बाहर तो जो है ना निकल गए तो बस पता नहीं क्या मिलेगा आपको दुनिया के अंदर। इट्स नॉट द केस। अब लाइक आप भी मतलब सारे ऐसे वेंडर्स से डील करिए हु आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुल है लोग। मैंने तो जितने लोगों से डील किया अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल और बड़ा मतलब करते हैं आपको। अभी भी वो चीज है बहुत ज्यादा हमारे अंदर के, मतलब ठीक है डबल क्रॉस करने वाले हैं जनरली, बट लाइक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। इट्स नॉट कि आप लाइक बाहर निकलोगे तो पता नहीं क्या लोग कहना शुरू कर देंगे आप। बस वही आप आई थिंक बहुत नेसेसरी है फॉर एक तो वही बात है कि टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत सारे जिस तरह अगर हमारे हैं अगर कुछ सोशल क्लासेस में ये मसले औरतें जो फेस कर रही हैं, मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से वो बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं। एंड देन आप जब हम एक मसला ये होता है ना कि जब आप घर की चार दीवारी में बैठे होते हो ना, तो आप दुनियादारी या वो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होती। तो आप जब निकलोगे बाहर तो आपको वो बहुत सी चीज़ें समझ आएगी, आपको लोगों के साथ डील करना भी आ जाएगा। और बाकी आप वाली बात सही है। उससे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके गई मार्केट ना, जो होलसेल मार्केट होती है उधर, फिर रहे थे तो शी वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज। शी वाज लाइक अच्छा इधर तो लोग बड़ी तमीज वाले हैं, और ये तो मतलब हमने पाकिस्तान के दिमाग में कुछ इमेज बनाया है, बट यहाँ तो कोई हरासमेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। होगी कुछ लाइक वी आर नॉट सेइंग कि नहीं है इस तरह की चीज, बट लाइक इट्स नॉट हर चीज ये नहीं, हर चीज ये नहीं है, और बहुत इम्प्रूवमेंट भी है। और आपको पता भी चल जाता है, आप काफी हद तक आपकी इंस्टिंक्ट आपको रखनी चाहिए ना आपको उस तरह से कि आप मत ऐसी जगहों पे जाओ रात को लेट नाइट ना जाओ अकेले। ये चीजें आप खुद अपनी आपको जिस तरह ऑब्वियसली मैं उधर अगेन आप अपने आप को उस तरह से कैरी करो उस एनवायरनमेंट में, आप अपने आप को आपका डिमीनर वो हो, बाकी अल्लाह बचाए। मतलब कोई भी किसी चीज से कहीं भी हो सकता है। डेफिनेटली उस चीज का तो है। सो वील रैप दिस अप विद अ क्विक रैपिड फायर राउंड, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बस व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड द फर्स्ट थिंग, तो यू हैव टू आंसर दैट। रोजेस और पियोनीज? रोजेस। मोस्ट रिक्वेस्टेड फ्लावर इन योर शॉप? लिली। लिली। एंड लिली आपको मिल जाता है इजीली? नहीं, मुझे लगा था यू वुड से क्राइसेंथेमम, क्योंकि मिलते ही नहीं, लिली डिमांड ज्यादा होती है, वो अलग बात है कि वो मिलता है बड़े कम है। एग्जैक्टली। बुके और सेंटरपीस? आई थिंक सेंटरपीस। सेंटरपीस। बेस्ट सेलिंग नॉन फ्लावर आइटम इन योर शॉप? The decoupage hand painted trays that we're stocking. Nice. One flower you would use in every arrangement if you could? One flower I would use in every arrangement I would, I think spray roses. Cash flow sheets or creative mood boards? I think ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके। Creative mood boards, cash flow sheets. Hardest part of running your own business? I think human resources. Yeah. One tip for aspiring florists? Learn from wherever you can. ये बहुत जरूरी चीज है, ये एडवाइस आई थिंक। वाइल्ड फ्लावर्स और लग्जरी ब्लूम्स? वाइल्ड फ्लावर्स। हम अपने बिजनेस को खराब वाइल्ड फ्लावर्स मैं तो कहती हूँ, मुझे आई होप आई कैन ग्रो अ गार्डन समडे where I just stock all the white flowers in my outlet. One word to describe your business journey so far, and I think we'll wrap this up. A roller coaster. Yeah. In all sorts of ways, emotional, financial. I think और ये तो like this will forever be the case. Yeah, with business entrepreneurs that's the case. Yeah. चीज नहीं होती. Thank you so much everyone for joining, and I hope आज की एपिसोड आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होंगी। I am sure एमन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और अब since she is back in Pakistan तो आप इनको तंग कर सकते हैं, आपने कुछ भी पूछना हो इनसे, and I am sure she would help you out in any way she can. Thank you so much, Hafiz.